नोटबुक घर पे इसलिए खुश है वो, थैंक गॉड। मैंने शायद उसकी पिक भी लेके भेजी है। Now today I'm going to start with a new topic that's called the elasticity of demand. What do you mean by elasticity? Elastic. तुम्हारे कपड़ों में इलास्टिक देखा है तुम लोगों ने? Stretch. Absolutely right. Extension, right? Right. और क्या बोलोगे तुम? मैं उधर आके बैठ जाऊं? उस तरफ आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Now what is, राशिका तुम बहुत बोलती हो बेटा, बहुत ज्यादा बोलती हो, पूरा टाइम बोलती रहती हो। I have noticed. वाला डब्बा दे दो इसमें से, that white वाला डब्बा। Now when I'm talking about price elasticity, ठीक है, और मैंने कहा elasticity of demand, वैसे हमारे सिलेबस में it is only price elasticity, but before that you must know what is elasticity of demand. Elasticity of demand क्या है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राघव लड्डा, राघव काव्य, ठीक है। सो डिमांड हमें ये पता है कि प्राइस increases accordingly, demand changes, but when price increases, at what rate demand changes? सपोज मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें कि प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ, अब हमें पता होना चाहिए कि भाई डिमांड कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। उस मेजरमेंट को वी आर सेइंग इलास्टिसिटी ऑफ। सपोज द प्राइस, as I said, price changes by 10%, the demand increased by 20%. The 20% is the rate at which there is a change in the demand due to 10% change in the price. That is what is the elasticity. For how much there was a change. So measuring that how much is a elasticity. Understood? So write down what is price elasticity. So we have, you see, we have three types of measuring elasticity of demand. There are three types of measuring elasticity of demand. One is called, कॉपी भी नहीं है, लिखो उसमें। There are three types of measuring elasticity of demand. There are three types of, बेटा ठीक से सर रख कर लिखो काव्या। There are three types of measuring elasticity of demand. One is price elasticity of demand. Price elasticity of demand. Second is cross elasticity of demand. Cross. ELAS TICITY. Price elasticity of demand, cross elasticity of demand, and income elasticity of demand.
syllabus में we have price elasticity of demand. We have price elasticity of demand, and when we talk about price elasticity, again we have number of methods in that. We have 3 methods, but हमें उसमें सिर्फ एक ही method करना है. We have to do only one method. Those 3 methods are percentage method और proportionate method, जिसे हम कहते हैं percentage method. मैम 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वापस क्या बताना? Sorry Mohit, whatever confusions you have, doubts you have, you come to school and ask me. मैं तुम लोगों को यहाँ क्लियर नहीं कर सकती, या तो मैं उनको क्लियर करूंगी या फिर मैं तुम लोगों को क्लियर करूंगी. नहीं, तुम यहाँ ऑनलाइन हो तो वापस बता दो खाली 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी. मैं एक ही चीज को 10 बार नहीं बोलूंगी. आई एम सिक विद दिस. मेरा दिमाग घूम रहा है बिल्कुल. मैं थक गई हूँ ये दो जगह तुम लोगों को एंटरटेन करके. मेरा सिलेबस भी नहीं बढ़ रहा है और मेरा कुछ भी नहीं बढ़ रहा. कल भी मैंने पेरेंट्स के आगे यही बोला था, हम टीचर्स हैं, मशीन नहीं है कि हम यहाँ भी ध्यान देंगे और यहाँ भी ध्यान देंगे. और इतने मशीन होते तो हम यहाँ नहीं होते, कहीं और होते. बोल दे. There are 3 methods of elasticity of demand. The first method is price elasticity of demand, cross elasticity of demand, and income elasticity of demand, which is not in our syllabus. Only one is there, that is price elasticity of demand. Now this price elasticity of demand again distributed into 3. One is called percentage method or proportionate method. Second is called, तुम लोग यहाँ पर ऐसे बैठ के सपने देखने के लिए आए हो? लिखो. पहला मेथड कौन सा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंडर, और क्या नाम है दूसरा उसका? तू लिख नहीं रहा था, तू इस दुनिया में नहीं था. proportionate method or proportionate method. Second is called total outlay method or expenditure method. Total outlay. outlay LAY. उसने सही बोला है. फिर total outlay method or expenditure method, and the third is not known as a geometric method or arc method. वो सिर्फ geometric method लिखो. अब इसमें भी we have to read only one method, that is known as a percentage method or proportionate. Now what is percentage method or proportionate method? What is percentage method or proportionate method? See, percentage method or proportionate method लिख लो क्या है. यार ओके. It is the responsiveness of demand of a good. It is the responsiveness. परसेंटेज मेथड. एक ही मेथड हमने पढ़ना है, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड सब होता है. इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल.
of demand of a good due to change in price. This concept was first put forward by Alfred Marshall which shows a percentage change in price, or which shows a percentage change in demand due to percentage change in price. Which shows a percentage change in demand due to percentage change in price. Due to percentage change in price. Now I'm just presenting screen for these guys. ये फॉर्मूला लिखो, दिस इज द परसेंटेज मेथड फॉर्मूला. ईडी इक्वल टू परसेंटेज मेथड का ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ईडी इक्वल टू percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. मैंने अभी भी बोला माइनस percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. This is the formula. This can be further elaborated. यार ये बोर्ड मिटा दो ना, मैं इसको और elaborately लिख देती हूँ. इसको and then I'll be explaining factors affecting elasticity of demand and कल न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये चैप्टर फिनिश, मतलब ट्यूसडे को न्यूमेरिकल्स करेंगे, चैप्टर फिनिश. तुम्हारा सिलेबस में ऑलमोस्ट 1 महीना पहले खत्म कर रही हूँ. ऑलमोस्ट पढ़ना शुरू कर देना. मैम टोटल 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, 6 उसमें से और 6 इसमें से. ओके मोहित, डेटशीट डाल दी ऑलरेडी. मैम पहला इको का ही है 12 तारीख को. इको 12 तारीख को है क्या? देखो बेटा, परसेंटेज चेंज ये क्या होगा, तो हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. ठीक है, दिस कैन बी elaborated written as ED equal to change in quantity demanded divided by initial quantity demanded by initial demand into 100 whole divided by change in price of X whole divided by initial price. Initial price into 100. मतलब ये पूरा का पूरा ये शो करता है और ये पूरा का पूरा ये शो करता है. अगर मैं चाहूं तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, दूसरे तरीके से ईडी इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अल्फाबेटिकली, ठीक है। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। इसको और इलैबोरेट कर सकती हूँ मैं, कैसे? ईडी इक्वल टू, ये डेल्टा क्यू को मैं लिख सकती हूँ Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब ये 100 कर गया, ठीक है, 100 कर गया। अब मैं इसको कैसे करूँ? ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, को मैं रेसिप्रोकेट कर सकती हूँ ना, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में आ सकता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, दैट इज पी अपॉन क्यू इंटू delta q upon delta p. Why I can write like this? Because all the numbers are in the multiplication form. So मैंने initial को एक तरफ ले लिया और changes को एक तरफ ले लिया। बताओ? माइनस डाल दो। माइनस डालने क्या जा रहा है? ये हैप्पी? और साइन से माइनस के पीछे पड़ा है। ये माइनस क्यों डाल दे यही बता दे जल्दी। तब से माइनस माइनस करना मतलब है माइनस क्यों डाल रही हो? क्या एडी नेगेटिव में होता है? नहीं, the law is the relation between price and quantity demanded is inverse related. That is why we are keeping negative sign in front of the formula. समझ आ गई? यहां समझ आ गई सबको? यहाँ पे ऑलरेडी एलॉबरेटेड है, यू कैन सी दिस। दैट इज द फॉर्मूला, लास्ट में मैंने लिखा है ना, elasticity of demand is equal to P minus P upon Q into delta Q upon delta P is the formula. समझ आ गया? समरीत कौर, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो सेकंड में है, माइनस लगाया इसका माइनस, P upon Q into delta Q upon delta P is a formula. Elasticity of demand find out करने के लिए. Okay. Now let's see what are the factors which affects elasticity of demand. और उसके बाद हम करेंगे numericals. The chapter is over. नहीं, degrees of elasticity बताना है मुझे. पहले elasticity of demand बताने के बाद degrees, नहीं पहले मैं degrees बताऊंगी फिर factors बताऊंगी. Now I'll tell you what are the degrees of elasticity of demand. There are 5 degrees of elasticity of demand. How do we measure elasticity of demand? और वो अभी हम नहीं कर सकते 15 मिनट में, it needs at least 20-25 minutes. ठीक है, ये फॉर्मूला समझ आ गया, आज हम इतना ही रखते हैं फिर। ये फॉर्मूला समझ आया? Yes, अगर नहीं ma'am. समझ आया तो प्लीज लेट मी नो। मोहित, नमन, क्या कह रहे हो? हटा के बोलो। 80 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का एमसीक्यू है एंड 40 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्ट है। ऑफलाइन है, इस बार सब पेपर में हाथ से चेक करूंगी। तुम लोग के लिए नहीं है वो, 12th वालों के लिए। $70, $20। देखो यार, इस बार मैंने दोनों कंबाइन किया है, मैंने वो डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है कि 20 मार्क्स का ये 20 मार्क्स का ये करके, ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला। जो तुम्हारा वहां पर है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारे टर्म 1 का जो सिलेबस है
उसी बेस पे मैंने बनाया। अगर वहां 6 मार्क का क्वेश्चन है एमसीक्यू में तो मैंने उसको अगर डबल करना, क्योंकि डबल हो गया पेपर, तो मैंने 12 नंबर ले लिया। मतलब तो इक्वल माइक्रो और दोनों मिला के 40 मार्क्स के एमसीक्यूज फिर 20 मार्क्स माइक्रो 20 मार्क्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स चार्ट रहा है तो मुझे चार्ट बता रही हूँ मैं, रुक जा, आई लेट यू नो। इंट्रोडक्शन ऑफ काव्य वर्चन। क्यों मैं सीधे सीधे जवाब दूं? यू डू नॉट नो व्हाट आई टॉट इन इंट्रोडक्शन एंड इन विच बुक आई हैव टॉट इंट्रोडक्शन? वी हैव 2 इंट्रोडक्शन, one introduction micro and one introduction statistics. क्यों पूछ रहे जब तुझे पता है तो? Why are you asking me when you know? Don't be over smart in front of me. Introduction, I am talking about statistics. Introduction is of 4 marks, so that will be converted to 8 marks. Collection और organization of data 9 marks का है, तो उसको मैंने 18 कन्वर्ट कर दिया. एंड मीन मीडियन मोड 10 मार्क का, तो 20 कन्वर्ट हो गया. तो ये टोटल मिला के 23 है, टोटल मिला के 23 है, और ये क्या हो गया वैसे 46 हो गया. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन जो 4 मार्क का है तो वो 8 मार्क का हो गया. एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यानी कि आपका थियरी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व, एनालिसिस, यूटिलिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो सारा मिला के 13 नंबर का, तो 26 का हो गया. तो ये टोटल मिलाकर कितने का हो गया? 7 7 14 34 मार्क्स का हो गया. टोटल मिला के 80 मार्क्स का हो गया. रिक्वेस्ट करूं नहीं, ये तो नेट में मिल जाएगा, नेट में 26 13 मार्क्स का वैसे है, तो मैंने उसको 16 मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया, 26 मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया. हाँ, 26 मार्क्स में कन्वर्ट कर. अब उसका स्प्लिट अप मैंने अपने हिसाब से किया है, वो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर वो मैंने बता दिया तो तुम लोगों को पता चल जाएगा ना कि 6 मार्क का क्वेश्चन किस चैप्टर में से, वो मैं ब्लूप्रिंट नहीं दूंगी तुम्हें. ये मार्किंग स्कीम तुम्हारे वहां पे भी है, नेट में पड़ा, उठा लेना इसको. बहुत टफ. Now degree, now what is left is degrees of elasticity of demand. ठीक है, प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाओ. सुबोध सर ने देख लिया ना, हाथ पैर तोड़ देंगे सर. भले निकल रहा है, तू क्यों निकाल रहा अपने हाथ से? 1 मिनट, listen to me very carefully. We have another only 2 topics left: elasticity, degrees of elasticity, or which is also known as a kind of elasticity of demand, and the other one is factors affecting elasticity of demand. Degrees of elasticity में introduction दे रही हूँ. There are 5 degrees of elasticity of demand. One is known as
यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि ईडी इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक, फर्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि ईडी इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिटरी इलास्टिक। ईडी इक्वल टू 1, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ईडी इक्वल टू 0, perfectly inelastic, ed equal to 0, perfectly inelastic, ठीक है। the second is known as ed equal to, क्या कर रहे हो तुम दोनों क्या करने आए हो स्कूल में? सुनना है? अच्छा बताना कितना इलास्टिसिटी है। मैंने कितने काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी बताए? जी नहीं, मैंने कितने काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी बताए? मैंने पूछा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने अभी बताया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी, हाउ मेनी श्रीवल्ली? टोटल 5। कौन लिखेगा? मैं लिखूंगी, मैं तुम लोगों को बता दे रही हूं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ इन द क्लास। ये क्या कॉपी बंद करके बैठा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको कॉपी करने के लिए, मैं ज्यादा स्पीड से नहीं बोल रही हूं, लिख ले। So there are 5 kinds of elasticity. First is ED equal to 1, which is known as unitary elastic. Second is ED equal to 0, which is known as perfectly inelastic. Third is ED equal to infinity. Which is known as perfectly elastic. Fourth is ED is greater than 1. Which is elastic demand. Then fifth is ED is lesser than 1, which is known as inelastic demand. ये पांचों के पांचों काइंड्स कर्व्स के थ्रू मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। बोल दिया ना उसने। याशिका नाम लिख बेटा। इक्वल टू लेस देन 1। याशिका नाम लिखो। एंजेलिन इनइलास्टिक डिमांड। भूमिका तुम्हारा नाम क्या है? एंड यू आर देवांश बंसल। देवांश गर्ग, दिव्या मडवानी, मोहित चौधरी, नमन कांकरिया, नंदना पिल्लई, नैतिक केवल रमानी। केवल रमानी। एक मिनट मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ साथ में। देवांश गर्ग है, देवांश बंसल है, कैलाश, याशिका। कितना बात करती हो तुम?
कैलाश कौन है? नहीं। काव्या? खुशी लोहान नहीं है, कुंज नहीं है, मनन लाठ नहीं है, मीत गढ़वी नहीं है, मोहित चौधरी है ना, he was there in the class. मुस्तानसिर नहीं है, क्लास में नैतिक, नमन, मैम मैं हूँ। नंदना पिल्लई, निखिल परिहार, नैतिक, निकित, पार्थ, पवन, रिद्धि, रिदम, समरीत कौर, सुतेज। मैंने तुमसे बोला बीच में बोलने के लिए, नहीं बताना। यू आर नॉट इन क्लास 7th और 8th और 9th। तीशा गौंबर, उत्कर्ष, वंश गोयल, वरुण नहीं है, याशिका, एंजेलिन, भूमिका, दिव्या मडवानी, गुरनूर नहीं है, प्रियल भट्ट नहीं है, रिदम सुरेश नहीं है, ऋतिका नहीं है, संजना नहीं है, शिरीष है, श्रीवल्ली है, श्रुति नहीं है। Okay, kids, you can leave the class now.